जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਪੰਥਨ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਖਾ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 8th ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੱਲਵ 'ਚ 5 ਇਅਰਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ,
मेरा बच्चा ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਬਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਓ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਸਟਰਬਡ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, आज मैं अपने शुक्राना पुष्प में बताना चाहती हूँ कि गुरुदेव ने सर्वप्रथम हम सब मस्त संगत जन पे जो वरद हस्त रखा है, उसके चलते हम ऐसी भयंकर से भयंकर परिस्थितियों से इतनी सहजता सरलता से बाहर निकलते जा रहे हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि कितने बड़े बड़े से बड़े तूफान को हम पार करके बाहर आ चुके हैं। आज अभी सुबह सुबह पहले तो गुरुदेव ने मेरी सुबह 3 बजे मेरी नींद खोली, लेकिन मैं नहीं उठ पाई, आलस के चलते कहें या नेगेटिविटी के कहते चलें, और वापस मैं सो गई। फिर वापस मेरी नींद खुली 5 बजे। संगत जी, मैं फिर वापस से सो गई और फिर मुझे ड्रीम आया है। ड्रीम में मैं देख रही हूँ कि मेरे अंकल जी और मैं, हम कहीं जा रहे हैं और हमारा बेटा नहीं है साथ में, मानो नई नई शादी हुई थी उस समय की बात हो। और हमें ऐसा दिखाई दिया कि हम किसी शहर में पहुँचे, शायद वो मुंबई शहर है, और वहाँ हम रहने के लिए जगह देख रहे हैं। तो एक कमरा हमें मिला है रेंट पे, तो हमने सोचा चलो रात यहीं गुजार लेते हैं। और उस कमरे में हम गए हैं तो वहाँ पर प्रभु परमेश्वर परमात्मा का हर घर में जैसा मंदिर होता है ना, हर एक जन अपने श्रद्धा के अनुरूप स्वरूप रखते हैं, मूर्तियाँ रखते हैं छोटी छोटी, वैसे बहुत सुंदर सजी हुई है। वहाँ पर नीलकंठ महादेव भी विराजमान है मूर्ति स्वरूप में, ऐसा दिखाई दिया। हम दोनों बहुत खुश हुए कि देखो कितना अच्छा कमरा मिला, यहाँ पर हमारे भगवान भी विराजमान है। और फिर हम निकल गए हैं घूमने के लिए। लेकिन जब निकले हैं घूमने के लिए तो अचानक हमारे पास बाइक है और मेरे अंकल जी बाइक चला रहे हैं, मैं पीछे बैठी हुई हूँ। लेकिन वो मुंबई नहीं था संगत जी, वो हिल्ली से कोई पहाड़ी एरिया था और बहुत बड़ी
अथाह नदी थी संगत जी, बहुत बड़ी नदी थी। और मेरे अंकल जी उन पहाड़ों से होते हुए उस नदी को पार कर रहे हैं। बहुत घुमावदार रास्ते हैं, बहुत खतरनाक रास्ते हैं, और हम चलते जा रहे हैं। और अचानक ऐसा आ रहा है कि बस अब खाई में गिरने वाले हैं, उस नदी में गिरने वाले हैं। जिस मोड़ से भी जा रहे हैं तो ऐसा आ रहा है। और अंकल जी जैसे हमें गुरुदेव बताते हैं कि कोई आत्मा अगर तुम पर अटैक करना चाहे तो तुम हट 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 ऐसा करो। तो मेरे अंकल जी ड्राइव कर रहे हैं, एक हाथ से एक्सेलरेटर चला बढ़ा रहे हैं, रेस कर रहे हैं, और दूसरे हाथ से हट 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 ऐसा करते जा रहे हैं। तो उनका देखकर मैं भी करने लग गई हूँ, हट हट हट, एक हाथ से राइट हैंड से ऐसे करके मैं हटाते जा रही हूँ। और आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। एक मोड़ ऐसा आया संकट जी कि बस अब हम खाई में गिर जाएंगे। लेकिन अंकल जी ने वहीं गाड़ी में ब्रेक लगा दिया। और वो इतनी पतली रोड है, दोनों तरफ खाई है, और हम वहीं रुक गए हैं। और मैं भी उनके साथ गाड़ी में बैठी हुई हूँ। फिर मैं उनसे कह रही हूँ कि ऐसा करते हैं, हम उतर जाते हैं बाइक से और धीरे धीरे पैदल चलते हैं। और फिर अंकल जी भी स्माइल दिए, हम दोनों उतरे और देखा तो थोड़ी 2 कदम चले तो हम अपने कमरे में वापस आ गए। तो मैं अंकल जी मुझसे कह रहे हैं देखो जहाँ से निकले थे वहीं वापस आ गए, और अंदर कमरे में हम गए हैं। मेरे अंकल जी मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं करते, बहुत बुरा एटीट्यूड है उनका, हमेशा गुस्से में रहना, एरोगेंटली बात करना, और बहुत चीख के चिल्ला के डांट के बोलना, गलतियाँ निकालना, ऐसा ही व्यवहार होता है। लेकिन ड्रीम में बहुत स्वीट उनका व्यवहार था। और कमरे में गए तो तब तो इतना प्यार आ रहा था उन्हें मुझ पे, बहुत प्यार से थे वो, इस तरह से। और वो ड्रीम ख़त्म हो गया संगत जी। अब कल की बात मैं बताती हूँ। कल आज जैसे ये सैटरडे मॉर्निंग को मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो फ्राइडे इवनिंग में मैंने एक मैसेज देखा गुरुदेव का। उसमें वे वो मुझसे कहते हैं कि तू कड़ा प्रसाद बना, तेरे हाथ का मुझे कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है, और बनाते समय सुखमनी साहिब का पाठ चला के रखना। तो मैंने पूरा खाना बनाया रात का संगत जी, और उसके बाद थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बनाया और सुखमनी साहिब का पाठ चलाया मैंने संगत जी। और उसका भोग प्रसाद बन गया, गुरुदेव ने वो ग्रहण किया और हमें प्रसाद दिया। तो हम तीनों ने, मेरे बेटे ने, मेरे अंकल जी ने और मैंने वो प्रसाद लिया। फिर मुझे याद आया कि सुखमनी साहिब का पाठ तो गुरुदेव इसलिए चला पाठ करने कहते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि घर का कलह कलेश पूरा खत्म हो जाता है, परिवार में सुख समृद्धि शांति बन जाती है, और एक रास्ता आ जाती है परिवार के सदस्यों के बीच में, आपसी प्रेम बढ़ जाता है। बाकी जो है उसके अनंत लाभ हैं जिसे मैं बखान नहीं कर सकती, लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ। तो वो मैं समझ गई, और वही चीज़ ड्रीम में दिखाई दी संगत जी। मेरे और मेरे अंकल जी के बीच के जो संबंध हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं, हम अलग हो जाएं। हमारी जो भी छोटी मोटी हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, या जो भी हमने अब तक अर्न किया, जमाया, वो सब लोग हड़प लेना चाहते हैं, मुझे घर से निकलवा देना चाहते हैं। ये बहुत सालों से प्रयास चल रहे हैं जो कि उनके फेल हो रहे हैं, और अब तो गुरुदेव हैं साथ में, तो संभव ही नहीं है कि ये सब चीज़ों में वो सफल हो पाएंगे। और कल तो गुरुदेव ने सब कुछ, सारे संकट ख़त्म कर दिए हम दोनों के बीच में जो थे, और हम दोनों के बीच में निश्चित रूप पे प्रगाढ़ प्रेम और आपसी समझ, केयर केयर, रिस्पेक्ट और लव दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। मेरे गुरुदेव के आशीष से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि कल फिर गुरुदेव ने कहा, चल जा, मैंने तुझे फिर अखंड सौभाग्यवती का वर दे दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरुदेव ने कहा भी था, तेरे परिवार के एक सदस्य को मैंने फिर न्यू लाइफ ब्लेस कर दी।
अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई के लिए गुरुदेव ने कहा कि उसे मैं ब्लेस कर रहा हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बेटे को बार बार गुरुदेव न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। मेरे परिवार के तीनों प्यारे बेटों को ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, और सारी नेगेटिविटी ख़त्म करते चले जा रहे हैं, दूर कहीं यूनिवर्स में भेजकर उसे वापस पॉजिटिविटी में बदल कर हमारे जीवन में इतनी सुंदर सकारात्मकता ला रहे हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुहाडा लख लख शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह जी। तुहाडा लख लख शुक्राना। गुरु जी ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਿਰੈਕਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਨਿਕਾਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖ ਲੈ ਪੁੱਤਰ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਤੂੰ ਮਿਠਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਪੁੱਤਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਿਠਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਡ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਛੂਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਛੂਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸੋਰਸਿਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, 5 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਤੇਰਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਟ ਹਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਹੀ ਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਏ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, आंटी अंकल जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बात ये है कि ना मुझे टैरो में एक मैसेज ऐसे सुनाई दिया कि जब आप जन्म हुआ था तब से एक दिव्य शक्ति आपके साथ थी, और शायद मेरी बुआ को भी मुझसे इसीलिए जलन थी कि इसमें ऐसा क्या है जो भगवान की इस पर इतनी असीम कृपा है। उसने मेरी कुंडली दिखाई होगी तो उसको मुझसे शुरू से ही जलसी थी संगत जी। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे जलती क्यों थी, उसकी बेटी भी ऐसी ही थी। तो छोड़ो, अब मेरी शादी हो गई, अब भी उनको मुझसे बहुत जलसी थी, पता नहीं किस बात की जलसी थी। जो मुझे मिला वो उसकी बेटी को नहीं मिला, बस ऐसा था। मेरे पति के साथ मेरी बनती थी, उसकी बेटी की नहीं बनती थी। उसकी बेटी की शादी ज़्यादा उम्र में हुई है तो वो पढ़ी लिखी भी ज़्यादा थी, मेरी कम उम्र में हुई तो मेरी ग्रेजुएट भी कंप्लीट नहीं हुई थी। थोड़ा सा ये था कि इसको काम वाम भी नहीं आता था, तो उसके घर में इतनी कदर है, मेरी बेटी की कदर नहीं पड़ी। तो छोड़ो, चलो इस बात को। कुछ तो मुझ में था अलग सा जो कुछ लोगों को जेलसी फील करवाता था। तो बात यह है कि साल भर मेरी बहन, मेरी नंद हमारे घर में रही, तो भगवान मुझे संकेत तो देते थे कि तुम्हारे घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो इसने क्या किया, मेरी बहन पर जाते ही कुछ ऐसा स्पेल्स कर दिया संगत जी। तो मुझे अपने घर में ससुराल में सपना आया कि मेरी नंद ने मेरी बहन के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, उसे काट दिया है, उसे मार दिया है। सपने में मैं इतना रो चिल्ला रही हूँ कि तुमने मेरी बहन को मार दिया। और फिर मैंने अपनी नंद को 2-3 थप्पड़ मारे, इसको पीटा। तो चलो उसको वक्त संकेत था कि तुम्हारी बहन पर कोई कष्ट ये डालने वाली है ये औरत। तो जब मुझे सपना मेरा टूटा तो मैंने अपनी नंदू को ये बताया। छुट्टियों में ये यहाँ पर आ जाती थी, साल भर वहाँ पर पढ़ती थी, ये पढ़ी थी। छुट्टी होती थी तो ये मेरे ससुराल आ जाती थी, मैं तो अपने घर आ जाती थी। तो मैंने जब इसको बताया तो ये इसने हंसने लगी, इसने हंस के टाल दिया। फिर एक बार हम अपने भाई के मेरी नंद के घर में गए हुए थे, तो उस वक्त मुझे अपने भाई के बारे में सपना आया कि मेरे भाई के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, कोई सी नेगेटिविटी है, कोई इसके अंदर। उसने एकदम से रात के समय में सोते हुए छलांग लगा दी मंजे से। हम छत पर सोते हैं, गर्मियों के दिन है, सपने में तो मंजे पर से छलांग लगा दी और छत पर ऐसे बैठ गया पैरों के बाहर, और फेस मेरे भाई का ऐसे उसने छुपा रखा है घुटनों में, और वो मुझ पर हमला करने को आतुर है। ऐसा लग रहा है कि वो मुझ पर हमला करेगा, मुझ पर चढ़ेगा छलांग लगाकर। मैं काफ़ी डर रही हूँ कि जो मुझ पर चढ़ जाएगा। तो एक मुझे ये सपना है संगत जी।
और एक क्या बात है, हम जब बासुरी पकाते हैं शीतला माता का, तो मेरी नंद की शादी उस वक्त हुई थी। इसने मुझसे कहा कि भाभी थोड़ी सी मेरा मीठी पूरी खाने का मन है, मुझे भेज देना। तो मैंने भेज दी संगत जी। उस वक्त तो मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं आया। अब मेरे मन में गुरु ने थोड़ा सा थोड़ा डाला, तो इसने उस पूरे पर ना कुछ मुझे लगता है तांत्रिक क्रिया वगैरह कराई होगी। मैंने इसको बाद में पूछा कि तुम्हारे घर में खा ली थी सबने पूरियाँ? इसने बात गोल मोल सी करती, खा ली थी बस, कम ही खाई, मैंने ही खाई। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना वो पूरे इसके घर में पहुंची ही नहीं, वो पूरियाँ कहीं और चली गई, किसी तांत्रिक के पास उस पर पूजा करवाई गई, कुछ तांत्रिक विधियाँ करवाई गई। और मुझे बासुरी खाने का इतना इतना शौक था, मीठी पूरी खाने का। जब से इसके घर से वो पूरियाँ गई हैं, उसके बाद से संगत जी मुझे प्रॉब्लम होने लगी। जब भी मैं मीठी पूरी खाती हूँ मेरे पेट में जलन होने लगती है, इतनी एसिडिटी, इतनी गैस बन जाती है ना, पता नहीं क्या हो जाता है। इसने उस पूरियों पर भी इसने कुछ करवा दिया, बासुड़ी पर भी। आप ये देखिए, माता को बासुड़ी भी इस औरत ने नहीं छोड़ा। इसको भगवान कैसे सजा ना दे, ये तो दंड की पात्र है। और मैं सोचती हूँ कि जब भी मैं बासुड़ी खाती हूँ मेरी एसिडिटी क्यों बन जाती है, मेरे पेट में इतनी जलन क्यों हो जाती है। चलो, इसके कर्म का हिसाब तो भगवान कर देंगे। और मेरे मन में ना एक थॉट और आया संगत जी। अब गुरु जी ने अपना चोला छोड़ा था, तो उन्होंने बहुत सी संगतों के कष्ट अपने ऊपर लिए थे। और मैंने सुना भी था कि उनका शरीर गुरु जी का बिल्कुल ख़राब हो गया था, वो जीने के लायक नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया। तो क्या थी जो बड़ी बीमारियां थी कैंसर वगैरह की, वो तो लेते थे गुरु जी अपने ऊपर, लेकिन जो आँखों की कोई बड़ी दिक्कत, थोड़ी सी कम दिक्कत होती है, वो मुझे लगता है गुरु जी डालते हैं संगतों पर। जैसे एक संगत को आंखों की ज़्यादा दिक्कत है, तो उसका कष्ट तो वो रह जाएगा 10%, बाकी 10%, 10% गुरु जी बाकी संगतों को वो कष्ट दे देते हैं कि ये भी झेल लेंगी। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास तो 10% कष्ट रह गया, बाकी और संगतों के पास भी वो कष्ट चला जाता है। ऐसा मैंने एक सत्संग में सुना। मुझे माइग्रेन की समस्या थी, तो मैंने शुक्राना किया। अगले दिन मैंने सत्संग सुना, आंटी जी ने कहा कि मैंने माइग्रेन का सत्संग सुना तो मुझे माइग्रेन हो गया। तो ऐसे ही मैंने किसी संगत का कोई सत्संग सुना था, उन्हें कोई दिक्कत थी पाँव में, पता नहीं पेट में, पता एसिडिक काशी की दिक्कत थी उनको, किसी चीज़ की। और मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे वो दिक्कत हो गई थी संगत जी। तो ऐसे मैं एक दिन गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मेरी आंखों में बहुत प्रॉब्लम है, मेरी आप आंखें ठीक कर सकते हो, आपने इतनी बड़ी बीमारी ठीक की है तो मेरी भी कर सकते हो। तो आप ये देखिए संगत जी, गुरुजी ने मेरी मंशा को, मन में जो था उसका ख्याल था जो, उसको दूर किया। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा जो रोग है, तुम्हारी जो बीमारी है, इसको दूर करने के लिए मुझे पता नहीं कितनी संगतों को और दर्द देना पड़ेगा और कष्ट देना पड़ेगा। मतलब कि तुम्हारा कष्ट तो मैं काट दूंगा, लेकिन कुछ कुछ % कष्ट तो मुझे बाकी संगत को देना पड़ेगा। और जो मेरे मन में जो थॉट आया था, तो गुरुजी ने मेरा थॉट दूर किया संगत जी। मेरे मन का जो विचार था वो उसको सच साबित किया कि हाँ ऐसा होता है। और एक कृष्ण भगवान की वो कथा सुनी है ना, बांके बिहारी वाली। जब वो कृष्ण भगवान को उन्होंने भोग लगाना होता है, तो उसमें भूल से जहर चला जाता है। तो जब कृष्ण भगवान को भोग लगता है, तो उनकी पूरी मूर्ति होती है वो नीली पड़ जाती है। फिर उनको लगता है कि है भगवान, हमने तो भगवान को विष ही पिला दिया। तो वो फिर सारी जो भी वहाँ पर संगत होती है, लोग होते हैं, उनको वो विष का प्रसाद दिया जाता है, एक एक चमचा। तो वो उन लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाता, थोड़ा होता है ना विष, तो उनके अंदर तो चला जाता है, वो कष्ट नहीं पहुंचाता। और जैसे जैसे वो लोग ग्रहण करते हैं ना वो विष वाला प्रसाद, विष वाली खीर होती है जो, तो उन लोगों को तो कष्ट नहीं होता। लेकिन कृष्ण भगवान की जो मूर्ति होती है वो नीली से वाइट हो जाती है दोबारा से। और जो भी कृष्ण भगवान के अंदर थोड़ा सा नाम मात्र रह जाता है, कहते हैं अब वो कृष्ण जी की सिर्फ चीची ही नीली है, जो हाथ की सबसे छोटी उंगली है वो ही नीली रह गई, उतना ही विष कृष्ण जी के अंदर रहा था। तो ये बात सत्य है संगत जी। कई बार गुरु जी अपने ऊपर नहीं लेते कष्ट, कई बार हम संगतों को भी भुगतना पड़ता है। अब हम संगतें हैं, भाई बहन बन गए हैं, एक हमारा परिवार है, जो परिवार ही है, बहुत बड़ा परिवार है गुरु जी का। और गुरु जी हम सबके पिता हैं। तो कई बार वो कष्ट हम भाई बहन भी आपस में एक दूसरे का बांटते हैं। तो ये वाला गुरु जी का भी रूल्स है। और मुझे लगता है ये मेरे मन में थोड़ा पहले गुरु जी ने डाला, और फिर बाकी संगतों तक ये मेरा मैसेज पहुँचे, तो गुरु जी ने इसलिए मुझसे ये आज सत्संग करवाया है संगत जी। तो ये मेरे मन का विचार था जो गुरु जी ने मेरे मुँह से बुलवाया।
तो कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, जैसे 1-2 संगतों ने कह दिया कि गुरुजी अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, तो बाकी सारी संगतें बिना विचार किए वही सत्संग के माध्यम से सुनाने लगी कि गुरुजी अपने ऊपर 90% लेते हैं, हमें 10% मिलता है। ऐसा नहीं है, कई बार हम संगतों को भी वो कष्ट भुगतना पड़ता है। मैंने कई सत्संग सुने हैं कि कुछ सत्संग में संगतें कहती हैं कि जब हम कष्ट वाला सत्संग सुनते हैं, वो कष्ट हमारे ऊपर आता है। तो ऐसा नहीं है, कुछ कष्ट हम भी भुगतते हैं संगत जी। सारा गुरुजी अपने ऊपर नहीं लेते, जो बड़ी बीमारी होती है सिर्फ गुरुजी वो ही लेते हैं। और जो कष्ट हम नहीं झेल पाते, वो कष्ट थोड़ा सा गुरुजी अपनी संगत को भी दे देते हैं। तो गुरुजी का ये आज्ञा थी कि मैं सत्संग आज ये सत्संग करूं, तो मैंने किया। तो अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो, या मेरे जो भी मैंने विचार आपके सामने रखे हैं संगत जी, आंटी जी, अगर आपको ऐसा गलत लगा हो, या आपको लगा हो, गुस्सा आया हो मुझे मेरे बोलने में मना कि इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो प्लीज़ आप बता देना आंटी जी, और मुझे माफ़ कर देना। और आपको अच्छा लगे तो मेरा सत्संग शेयर ज़रूर कर देना, अगर इसमें कोई ज्ञान की बात हो, ताकि बाकी संगत तक भी ये पहुँच सके। तो मैंने तो गुरुजी की आज्ञा से ही किया है, और जो उन्होंने बुलवाया मैं तो वही बोली हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को ब्लेस करना, सबकी रक्षा करना। हमारी तरह से भी दुखी भी हैं, सबके बहुत से दुख हैं, बच्चों को, पतियों को बहुत सी बीमारियां हैं, जो आप काट देना। और हमारा घर, मेरी फैमिली और मेरी मायका फैमिली को भी ब्लेस करना, आंटी जी अंकल जी को सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।